ਹੈਲੋ एवरीवन ਦਿਨ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯੋਰ ਔਨ ਚੈਨਲ ਰਾਈਟ ਔਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਨੂੰ ਸੀ ਟੈਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ। ਔਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟਸ ਔਰ ਕਿਊਬ ਰੂਟਸ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਸ਼ੋਰਟ ਟ੍ਰਿਕਸ ਸੀਗੀ ਜੋ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੈਪਟਰ 2 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਔਰ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਔਰ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਬਟ ਇੱਕ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜੋ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1-2 ਮੰਥਲੀ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਊਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਮੈਥ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨੇਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਔਰ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ 1 ਪੇਪਰ 2 ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਲਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਵਰ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਬਾਰੇ। ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਚਲਿਏ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟਸ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਰੂਲਸ ਕੀ ਨੇ। ਵੇਟ, ਹਾਂਜੀ, ਰੂਲਸ ਕੀ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਪਾਵਰ a ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟੂ x ਪਾਵਰ b ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਬੇਸ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ x ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਹੈ, a ਔਰ b ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਪਾਵਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਬੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਐਡ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2 ਪਾਵਰ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਪਾਵਰ 5, ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 ਪਾਵਰ 2 ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, 5 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, 3 ਟਾਈਮਸ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਟਾਈਮਸ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਟੂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ,
उस तो बाद मैं की कर सकती हाँ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਨੂੰ मैं 2 टाइम्स लिख सकती हाँ। अगर मैं देखा मैंने इत्थे कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, मेरे को सारे 2 ने जो आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, और ਜਦੋਂ मैं इन्हों ओवरऑल देखांगी तो टोटल मेरे को किन्ने हो जाते हैं 5 हो जाते हैं, जिसनों मैं 2 ਦੀ पावर 5 लिख सकती हाँ। ठीक है, तो इस तरीके ਨਾਲ मेरे को ईजी जी चीज़ है, बट इसनों अपना इदा इन्ना नहीं सोल्व करना। अपने जस्ट एक ही चीज़ याद रखनी है कि अगर मेरे को बेस सेम है और मल्टीप्लाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, दैन पावर्स का मैं की कर देना है, ऐड कर देना है, दैन पावर्स का मैंने की कर देना है, ऐड कर देना है। क्लीयर है जी ये चीज़? ये तो सीगा फर्स्ट फॉर्मूला। सैकेंड अगर आप गल करिए सैकेंड रूल की है मेरे को, सैकेंड रूल मेरे को है, अगर यही चीज़ मैं तुहाडे सामने डिवाइड दे विच लिखदा, लाइक एक्स दी पावर व्हाट हैपन एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी, एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, मतलब ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, एक्स ए माइनस बी आ जाएगा। क्लीयर है ये चीज़? क्लीयर है? हुण इत्थे भी मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल लैके दिखा देनी हाँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं इत्थे लिख रही हाँ 2 पावर 3 और नीचे मैं लिख रही हाँ 2 पावर, और नीचे मैं लिख रही हाँ 2 पावर 2। दैन ये मेरे को की होएगा, बेस मेरे को इत्थे भी सेम सीगा, इत्थे भी सेम सीगा, दैन पावर्स का मैं की कर दाँगी, माइनस कर दाँगी, और 3 माइनस 2 मेरे को कितना होंदा 1, मतलब 2 पावर 1। हुण ये कितना आया मेरे को, इसका मतलब की हो गया, देखो मेरे को की सीगा 2 पावर 3 सी ना, तो ऊपर मैं की लिख सकती हाँ 2 नूं 3 टाइम्स लिख सकती हाँ, उसनूं मैं डिवाइड कर रही हाँ 2 पावर 2 नाल, मतलब 2 नूं 2 बार। हुण ये चीज़ तो मैंने क्लीयर है कि मेरे को जो चीज़ कैंसिल होंदी है उसनूं मैं कैंसिल कर देनी है, और पिछे मेरे को की बच गया ओनली 2। पावर कुछ भी नहीं है, दैट्स मीन 1 है। जो पावर कुछ भी नहीं है दैट्स मीन पावर की है 1 है। ये चीज़ अपने माइंड के रखो, पावर 0 नहीं करनी उत्थे, जिथे कुछ भी नहीं है पावर उत्थे मेरे को की होएगी 1 होएगी, और 2 3 4 5 अगर मैं कला 4 लिख देनी है दैट्स मीन 4 की पावर 1 की गल हो रही है उत्थे, अगर मैं कला x लिख देनी है दैट्स मीन x की पावर 1 की गल हो रही है उत्थे। ठीक है जी, चलिए अगे। हुण थर्ड देखो, थर्ड तुहाडे सामने है, थर्ड दे विच मैं की डिस्कस कर रही हूँ कि x पावर a इंटू वाई पावर ए, ये मेरे को की होएगा। हुण ये मेरे को की है, मेरे को बेस नहीं सेम हैगा, इत्थे ध्यान नाल देखो मेरे को बेस नहीं सेम हैगा, मेरे को पावर सेम ने, दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर की है ए है। ठीक है, दोनों की पावर सेम है, दैन इत्थे मेरे को की हो जाएगा, इत्थे मैं लिख सकती हाँ एक्स मल्टीप्लाई वाई, दोनों की पावर नूं मैं कंबाइन करके लिख सकती हाँ, दोनों की पावर मेरे को की हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके उन्होंने पावर की हो जाएगी, जो एक पावर मैनूं गिवन है वो हो जाएगी। ठीक है, हुण इत्थे तुसीं ऐड ना कर दियो, इत्थे मैं बेस देखो जो बेस सेम ने उदों मैं पावर्स ऐड कर रही हाँ, बट जो पावर सेम है उदों मैं बेस जेडे भी साइन दे विच ने, मल्टीप्लाई विच ने तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड विच ने तो डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुहानूं इत्थे कह देवां कि 3 दी पावर कि 3 पावर कुछ भी ले लो तुसीं 2 इंटू 4 पावर 2, तो मेरे को इत्थे की होएगा, इत्थे मेरे को हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 पावर 2। हुण तुसीं उत्थे इन्ना कुछ लिखण दी तुहानूं की जरूरत है कि 3 मल्टीप्लाई 4 है ना, तुहानूं पता है कि जो इन्हां दोनों की मल्टीप्लाई होनी है तो तुसीं डायरैक्ट लिख दो 3 4 12 12 पावर 2। समझ रहे हो इस चीज़ नूं? ठीक है जी। अगर मेरे को दोबारा दस रही हाँ, अगर मेरे को बेस सेम है दैन पावर्स का ऐड होएगा, अगर मेरे को पावर सेम ने दैन जो बेस ने और जेडे भी साइन दे विच ने, अगर वो मल्टीप्लाई दे विच ने तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर वो डिवाइड दे विच ने तो डिवाइड हो जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं जेकर मैं तुहानूं इदां कह दा कि विच एडिशन है ਜਾਂ विच सबट्रैक्शन है, इत्थे आपां सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड की गल कर रहे हैं, इत्थे तुसीं ऐड ਜਾਂ सबट्रैक्ट ना लै लिओ विच, किते तुसीं कहो कि मैम ने कैसी जो भी साइन है कि इत्थे ऐड होवे तो तुसीं इन्हां दा ऐड कर देवो, वो चीज़ नहीं हुंदी। एडिशन और सबट्रैक्शन लिए आपां जो फॉर्मूलाज किते सी वो फॉर्मूलाज मैं तुहानूं कल लिखवाए सी, आपां उन्हां नूं फॉलो करांगे, अगर नहीं सॉल्व हो रहे तो उन्हां नूं एज इट इज़ रखांगे। ठीक है जी, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड की इत्थे गल हो रही है। फोर्थ जो फॉर्मूला है वो तुहाडे सामने किहड़ा है, वो है एक्स पावर ए डिवाइड बाय वाई पावर ए, दैन इसनूं मैं इकट्ठा पूरा लिख सकती हाँ एक्स अपॉन वाई पावर ए। ये भी मैं तुहानूं उही चीज़ दसी है, मल्टीप्लाई सी दैन अपने की किया, दोनों की मल्टीप्लाई करके सेम पावर सी वो लगाती, इत्थे भी की है डिवाइड हो रही है, दैन दोनों की डिवाइड करके भी जो पावर है उसनूं मैं एज इट इज़ रख रही हूँ। क्लीयर है ये चीज़? चलिए अगे, चलिए हाँ जी। तो नैक्सट की है मेरे को, अगर मैं तुहानूं कह देवां मेरे को कोई नंबर है
x उसकी पावर a है और उसकी अगे पावर v है, समझ रहे हो। तो इस दे विच की होएगा x की पावर मैं a भी लिख सकती हाँ। मतलब मैंने इत्थे की किया, जो मैंने पता लगा कि पावर की अगे पावर है, दैन ये दोनों चीज़ां आपस में की होंदी है, आपस में मल्टीप्लाई दे विच हो जाती है, आपस में किहदे विच हो जाती है, मल्टीप्लाई दे विच हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहां 2 पावर 3 पावर 4 तो तुसीं इत्थे की करोगे 2 पावर 12, क्योंकि जो ये वाले दो अगर गल करिए पावर के अगे पावर सी ना तो वो किहदे विच हो जाएगी, मल्टीप्लाई दे विच हो जाएगी। ठीक है, हुण तुसीं इसनूं थोड़ा करके भी देखोगे। अगर 2 पावर 3 है ना, मैं की किया 2 नूं 3 टाइम्स लिखता, उसके अगे की है पावर 4 है ना, उसके अगे की है पावर 4 है ना। ठीक है, अगर मैं गल करा देखो हुण मैंने इस चीज़ नूं पूरी नूं 4 टाइम्स लिखना है, समझ रहे हो इस चीज़ नूं। अगर मैं कह रही हूँ कि इसकी पावर 4 है दैन मैंने इसनूं कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। जो तुम इसनूं 4 बार लिखोगे तो तुहाडे कोल कितना बन जाएगा 1 2 3 एंड 4, समझ गए। मैंने की किया 4 टाइम्स लिखता, ये मेरे को 1, ये मेरे को 2, ये मेरे को 3, ये मेरे को 4। हुण मैं टोटल काउंट करा, मेरे को कितने 12 हो गए, 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और वही मेरे को बनया 2 पावर 12। सब कुछ इदा ही ईजीली सोल्व हो जा रहा है। तो समझाने लई सी, तुसीं बस इन्हों याद रखो कि किसे किवें इन्हों यूज़ करना है। ठीक है, अगर पावर की पावर है तो उन्होंने की कर दो मल्टीप्लाई। बाकी इदा रट्टे लगाने नाल नहीं याद होगा। तुसीं अगर क्वेश्चनस नूं करोगे, जिन्ने क्वेश्चनस करोगे उन्ना तुहाडा माइंड दे विच जो है सब कुछ फिक्स हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगे अगला जो है तुहाडे सामने। हुण इहदे विच एक चीज़ याद रखियो, इसका मतलब ये नहीं हुंदा कि अगर मैं कहां x पावर a पावर b, हुण इस चीज़ का और इस चीज़ दे विच कोई डिफरेंस नज़र आ रहा तुहानूं। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। देखो इस दे विच की है, हुण देखो इहदे विच की है, मेरे को जो b पावर है, जो मेरे को b पावर है वो सब सारे दी है, सारे मिनटू से x पावर a दी अगे b पावर है। बट ये देखो ये मेरे को कल्ली a दी पावर है। फर्क समझ रहे हो, इत्थे जो ब्रैकेट है उसने क्लीयरली बोलता कि जो b पावर है वो सारे दी है, जो भी x पावर a जिन्ना भी मेरे को होएगा उसकी अगे जिन्नी पावर है वो सब दी होएगी। ठीक है, बट इत्थे जो b पावर है ये विदाउट ब्रैकेट है, तो इत्थे एक चीज़ तो क्लीयर होगी कि जो ये b पावर है वो सारे दी नहीं है, वो सिर्फ a दी है। हुण देखो इसमें एग्जाम्पल नाल, ठीक है, सो यह इक्वल नहीं होएगा आपस के विच। ठीक है, सो इसमें अगर मैं कहां बहुत सारे स्टूडेंट इदा की गलती करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं मैथ टॉपिक जो है चक रही हूँ कि x की पावर a सॉरी x फेल ले लिया मैं 2 की पावर 3 की पावर 4। ठीक है, ये चीज़ लै रही हूँ मैं, और 2 की पावर 3 और इसकी पावर 4। ये तो आप हुणी सॉल्व करके आए हैं। ये किहदे इक्वल होएगा, मैं तो हुणी दसिया कि जो तुसीं इसनूं सॉल्व करोगे तो इन्हां दोनों की मल्टीप्लाई कर दिओ तो ये मेरे को कितना बन जाएगा 2 पावर 12। बट ये कदे भी इदा नहीं होएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट की करते हैं पावर की पावर नूं ध्यान नाल नहीं देखते। अगर मेरे को की है पावर की पावर नूं ध्यान नाल नहीं देखते, मतलब इसका ये है। ठीक है, ब्रैकेट बाद विच है तो कदे भी इक्वल नहीं होएगा 2 की पावर 12 दे। कदे भी ये चीज़ अपने माइंड विच बिठा लो। अगर तुहानूं विच ब्रैकेट गिवन है तो ही उसनूं आपां सॉल्व करांगे, अदरवाइज वो नॉट इक्वल होएगा, अदरवाइज उससे सॉल्व करने का तरीका कुछ होर होएगा। ठीक है, क्लीयर। हुण तुसीं कहोगे कि इससे सॉल्व करने का की तरीका होएगा, इससे सॉल्व करने का तरीका ये होएगा, इसनूं तो छोड़ दो क्योंकि तो है ही नहीं। इसनूं आपां इस तरीके नाल सॉल्व करांगे। देखो हुण 2 की पावर 3 की पावर 4 है ना, हुण मैनूं ये चीज़ दसो 2 की पावर, हुण देखो 3 की पावर 4 नूं मैं इत्थे कल्ले नूं सॉल्व करांगी क्योंकि इत्थे मेरे को कल्ले 3 की पावर 4 है। दैन मैं 2 नूं क्यों नाल लैके चलां, जो मेरे को गल ही सिर्फ 3 की की गई है। तो 3 की पावर 4 कितनी हुंदी है, 3 × 3 × 3 × 3 कितनी हुंदी है 81 हुंदी है। तो इत्थे मेरे को 2 की पावर 81 होएगी। तुसीं दोनों च फर्क समझ रहे हो, दोनों के विच डिफरेंस क्लीयर हो रहा है। तो इस डिफरेंस नूं अपना पूरा क्लीयर कर लो कि दोनों के विच की फर्क है, इदां दी गलतियां नहीं करनियां। ठीक है, नैक्सट चलिए। नैक्सट अपने को है एक होर, मैं तुहानूं दसदा कि अगर बाय चांस मेरे को कोई भी वैल्यू है जिस दे विच मैनूं पावर नैगेटिव दे विच गिवन है, दैन अगर मैं उसनूं इदां लिख दिंदी हाँ दैन वो पावर मेरे को पॉजिटिव हो जाती है।
ਹੁਣ देखो इस दे विच मैंने की कीता है, अगर मैंने कोई भी नंबर है उसकी पावर मैंने नैगेटिव च गिवन है, पावर के अगे माइनस लगाता, तो मैं उसको चेंज कर देवांगी। चेंज कर देवांगी इन द सेंस कि उस अगर डिनोमीनेटर है तो उसको न्योमीनेटर बना दांगी, अंश है तो हर बना दांगी, हर है तो अंश बना दांगी। ठीक है, हुण देखो इत्थे मैंने की किया, इस दे नीचे कुछ नहीं सीगा, 1 सीगा। ठीक है, मैंने इसनूं उल्ट करता तो मेरे को 1 बाय जो नैगेटिव पावर सी उपर तो जब मैं नीचे लेके आई तो नैगेटिव पावर पॉजिटिव दे विच कन्वर्ट होगी। ठीक है, अगर यही चीज़ मैं इदा कहां कि मेरे को है 1 बाय एक्स की पावर माइनस ए, ठीक है, तो यह मेरे को की हो जाएगा, जो हूँ ये डिनोमीनेटर के विच है मैं उसको उपर लैके चली गई तो पावर पॉजिटिव होगी। समझ रहे हो, मैं कुछ नहीं किया, बस कला रेसिप्रोकल करता, जो अगर उपर है तो नीचे ले आई, नीचे है तो उपर ले आई, तो जो पावर है और नैगेटिव की जगह की हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, हुण अगर मैं तुहानूं कह देवां कि 1 बाय 2 की पावर -3 है तो इसका मतलब ये 2 पावर 3 है। ठीक है, और अगर मैं तुहानूं कहां कि मेरे को 2 पावर -5 है तो इसका मतलब यह 1 बाय 2 पावर 5 है। समझ रहे हो इस चीज़ को। अगर मैं तुहानूं कहां कि मेरे को 4 बाय 5 की पावर -2 है तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल की है, उल्ट कर दो जी, गल ही खत्म हो गई, तो इसकी पावर की हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। और आप कदे भी नैगेटिव दे विच पावर नूं सॉल्व नहीं कर सकते, पहला उसनूं पॉजिटिव दे विच चेंज करो, आफ्टर दैट उसनूं सॉल्व करो। ठीक है, ये सारिया आइडेंटिटीज़ अपने माइंड के बिठा लेना। ठीक है, अगे अगर आप गल करिए, उम्मीद है भी थानू क्लीयर होगी होएगी। नैक्सट अगर गल करिए तो बिल्कुल इसनूं तुसीं इदां लिख सकते हो, जो इसकी जो हुणी मैं तुहानूं दस्सिया, तो इसनूं आपां लिख सकते हैं कि अगर मेरे को A/B पावर कुछ भी लगा लो तुसीं, ए नहीं लवांगे, तो मैंने लै लिया C है। ठीक है, -C है तो तुसीं इत्थे की लै सकते हो, B/A की पावर जो नैगेटिव है वो की हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, चलो हुण तुहानूं याद होवे, मैं तुहानूं हुणी दस्सिया सी कि मेरे को अगर ओनली 4 लिखिया होया दैट्स मीन उसकी पावर 1 है। बहुत सारे स्टूडेंट पता की करते हैं, इसकी पावर 0 बना देंगे हैं। जी नहीं, इसकी पावर 1 है। कोई भी पावर मैंने कुछ नहीं दिता होया, कल्ला एक्स दिता होया, उसकी पावर 1 है। समझ रहे हो। हुण तुसीं सोचोगे फिर 0 किसकी पावर होंदी है। देखो अब मैं किसी भी नंबर की 0 करदा, फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थे कोई भी नंबर लै रही हूँ, लाइक मैंने 2 लिया। ठीक है, 2 की पावर मैंने 0 करती, तो किसी दी भी पावर 0 करो, उन्हें ऑलवेज किया जाना 1 आ जाना है। डजन मैटर और 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 लाख है, करोड़ है, जिन्ना नैगेटिव दे विच मैं इत्थे लै लैनी -4 दी पावर 0, 1 आएगा। ठीक है, लाख दी पावर 0, 1 आएगा। कोई मर्जी नंबर है उसकी अगर पावर 0 होगी 1, गल खत्म। ठीक है, पावर 0 का मतलब हो गया कि उस नंबर को आप बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे किसी नाल भी, मतलब की हो गया 1 होएगा वो। ठीक है, हुण अगर गल करिए तो इसनूं जनरली किवें लिख सकते हैं कि मेरे को कोई मर्जी वैल्यू होवे, जो उसकी पावर 0 हो जाती है तो वह ऑलवेज मेरे को की हुंदा 1 के इक्वल हुंदा। ठीक है जी। ठीक है, हुण तुसीं सोचोगे चलो ठीक है, अगर मैं 0 की पावर 0 करदा फिर तो वह भी 1 होना चाहिए। जी नहीं, इदा का पूरे मैथमैटिक्स के विच कोई नंबर ही नहीं है कि तुसीं 0 की पावर 0 कर दोगे। ठीक है, इसलिए इसनूं की बोलते हैं आप, नॉट डिफाइंड, कि पॉसीबल ही नहीं है ही नहीं पूरे मैथ के नंबर, गल ही खत्म होगी। यह नंबर की हुंदा नॉट डिफाइंड हुंदा। और इदा के छोटे छोटे क्वेश्चन तुहाडे एग्जाम के बनते हैं। इन्हां चीज़ों को अपने माइंड के ध्यान नाल फिक्स कर लो कि अगर मेरे को हुण देखो, अगर मेरे को कोई भी पावर नहीं है दैट्स मीन उसकी कितनी है, पावर 1 है। ठीक है, अगर मेरे को पावर कितनी है कोई भी नंबर की 0 है दैट्स मीन उसकी वैल्यू कितनी है 1। फिर अगर गल कर रही हूँ मैं 0 की पावर 0 की, ठीक है, तो वह मेरे को की होएगा नॉट डिफाइंड होएगा, क्योंकि पूरे मैथमैटिक्स के विच इदा का कोई नंबर हाले तक नहीं है। ठीक है, क्लीयर है ये चीज़। हुण एक होर चीज़ है इन्हां दे नाल ही रिलेटेड कि अगर मैं इनफिनिटी वर्ड यूज़ कर लैनी है, इनफिनिटी की होंगे लगातार चलते रहना, पता नहीं जी कितने तक खत्म होएगा, इनफिनाइट भी जिसनों बोल देने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अगर मैं तुहानूं कहां कि 1 की पावर इनफिनिटी है, ठीक है, जो किसी की भी पावर इनफिनिटी है, जो n की पावर इनफिनिटी है, तो यह जो चीज़ है ये भी की होंगी है पॉसीबल नहीं है, ये भी की होंगी है नॉट डिफाइंड होंगी है। 1 की पावर 0 जो किसी की भी पावर 0 की पावर 0 जो किसी की भी पावर इनफिनाइट हो जाती है, तो वह कि दोनों चीज़ा की ने नॉट डिफाइंड ने, वो दोनों चीज़ें की ने नॉट डिफाइंड ने। एक होर चीज़ अपने माइंड के विच रखो। हुण मैं तुहानूं कहा सी कि मेरे को 3 है, इसकी पावर -2 है, तो मेरे को 1/3 की पावर 2 हो जाएगा। क्लीयर है ये चीज़। बट जेकर मैं तुहानूं कहां कि 0 की पावर
कि 0 की पावर मेरे को की है -2 है, ठीक है। 0 की पावर मेरे को की है -2 है, तो ये मेरे को की बन गया जी, इत्थे मेरे को की बन गया, ये तो 1/0 की पावर 2 बन गया। और जेडे बच्चे मैथ पढ़ते ने उन्होंने यह चीज़ प्रॉपरली क्लीयर है कि कदे भी डिनोमीनेटर दे विच 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो मैं तुहानू करवाया सी नंबर सिस्टम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मैं तुहानू रैशनल नंबर करवाए सी तो उदों मैं तुहानू करवाया सी कि रैशनल नंबर होंगे P/Q फॉर्म के, और जिहदे विच जो Q है वो कदे भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ਇਹਦਾ कारण यह सी कि अगर डिनोमीनेटर हर 0 हो गया तो उत्थे अपने को जो वैल्यू है वो आप सॉल्व नहीं कर सकते, वो की हो जाती है नोट डिफाइंड हो जाती है, वो भी की होंगी है नोट डिफाइंड होंगी है। ये तीन चीज़ां बिठा लिया माइंड दे विच। हुण एक बार ओवरव्यू जिहा लै लैंदे आ कि किहड़ी चीज़ां नोट डिफाइंड दे विच आउंदियां ने। 0 पावर 0 कर दो, एक ही होएगा नोट डिफाइंड होएगा, ठीक है। कोई भी पावर है इनफिनाइट होएगी तो नोट डिफाइंड होएगा। अगर मैं किसी भी 0 की पावर नैगेटिव च कुछ लै रही हाँ, क्योंकि उसने जाके की बन जाना है 1/0 बन जाना है, तो वह भी की होंगी है नोट डिफाइंड होंगी है। आ तिने चीज़ां अपने माइंड दे विच बिठा लो, ठीक है जी। आ तिने चीज़ां पेपर 1 पेपर 2 दोनों स्टूडेंट्स लिए है, ठीक है। अपने माइंड दे विच इन्हां नूं बिठा लो। और अगर 1 की पावर एक होर चलो तो ठीक है, क्लीयर है ये चीज़। चलो फिर अगे हैगा कि 1 की पावर कितनी मर्जी हो जाए 1 होंगी है, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है। 1 नूं 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा, 1 नूं 200 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा, 1 की पावर -4 लै लो 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं बनता। n की वैल्यू कुछ भी हो, 1 की पावर अगर n है तो मेरे को आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। चलिए अगे। सो नैक्सट मेरे को है, नैक्सट अगर आप गल करिए तो उस तो बाद देखो मेरे को किया जाता है। अगर मैं तुहानू कह रही हाँ x की पावर 1/n है तो इसका मतलब है n टाइम्स रूट x। एक चीज़ तुसीं हमेशा क्वेश्चन के देखी होगी हमेशा कि जो भी मैंने पावर लिखनी होंगी है 2 की पावर 1/2 है, उसनों तो मैं लिख देनी है कला स्क्वेयर रूट, उसनों तो मैं लिख देनी है कला स्क्वेयर रूट। अगर मैं कह दा कि 3 की पावर ले लो या 2 की ले लो, की फर्क पैंदा है ना। 2 की पावर 1/3 है तो इसनों तो मैं लिख दी हाँ 3 इस तरीके नाल। इत्थे भी मेरे को 2 होंगे बट आप लिख देनी, सो वो की है कला स्क्वेयर रूट आप लिख दिया, कोई फर्क नहीं। अगर तो कला स्क्वेयर रूट है दैट्स मीन पावर 1/2 है। अगर कोई भी स्क्वेयर रूट के उपर तो लिखा होया है, हुण अगर मेरे को पावर 2 की पावर 1/7 है तो मैं इसनों लिखूँगी 7 टाइम्स इसका स्क्वेयर रूट कितना होएगा। समझ रहे हो इस चीज़ नूं, ठीक है। तो वो की होंगी है रूट के उपर लिखी हुई होंगी है वैल्यू, तो यही चीज़ मैं इत्थे लिखी है, यही चीज़ मैं इत्थे लिखी है कि x की पावर अगर 1/n होएगी तो ऐदा नहीं है कि n मूरे नहीं लिखा होएगा। इत्थे ना थोड़ा एक डिफरेंस अपना ध्यान च रखियो, एक तो ये वैल्यू होंगी है बट ये नहीं लिख रही मैं थोड़ा जा उपर लिख रही हाँ जिहदे विच मैनूं पता लगे कि यह पावर की गल हो रही है 1/, की गल हो रही है, ठीक है। तो इन्हां दोनों दे विच और इस चीज़ दे विच डिफरेंस है, इस डिफरेंस नूं आपां क्वेश्चन दे विच ध्यान नाल समझांगे, ठीक है। तो इस चीज़ नूं अपने ध्यान नाल देखियो। नैक्सट अगर गल करिए बाई चांस अगर मैं तुहानूं कह दा कि इत्थे मेरे को की है x पावर a है और इत्थे मेरे को की है x पावर b है, बेस दोनों दे सेम ने दैट्स मीन जो पावर्स ने वो भी की होणगियां इक्वल होणगियां। बेस दोनों दे सेम ने तो जो पावर्स ने वो भी इक्वल होणगियां ही होणगियां। क्लीयर है ये चीज़, ठीक है जी। चलिए अगे, चलिए हुण देखो अगे अगर आप गल करिए ये तो सी जो मेरे को बेस सेम हो जाते हैं और पावर डिफरेंट हो जाती हैं। अगर मैं तुहानूं कह दा कि मेरे को की है पावर्स तो सेम है, सॉरी पावर्स तो सेम है बट जो बेस ने और डिफरेंट ने, तो इत्थे की होएगा जो बेस ने वो आपस दे विच इक्वल हो जाएंगे, तो इत्थे की है बेस आपस दे विच इक्वल हो जाएंगे। ये सारे जो रूल्स ने इन्होंने नोट करते रहिए, नोट्स अपने बनाते रहिए, ठीक है। तो यही की है, क्लीयर है ये चीज़। नैक्सट चलिए अगे, ठीक है। हुण इहदे विच की है x इज इक्वल टू y, क्योंकि इहदे विच की है पावर सेम है तो मेरे को बेस इक्वल होणगे। और अगर मेरे को की हुंदा सॉरी अगर मेरे को की हुंदा बेस इक्वल होंगे तो मेरे को पावर सेम हो जानियां सी, ठीक है। हुण एक होर देखो, अगर मैं तुहानूं कह दा कि ना ही तो मेरे को की है बेस सेम ने ना ही तो मेरे को की है बेस सेम है और ना ही मेरे को की है पावर सेम है। लो जी हुण इत्थे की हो सकता है, इत्थे 3 केसिस ने जो अपने वो बन जाते हैं, केस 1 केस 2 केस 3, ठीक है।
केस 1 केस 2 केस 3। तो फस्ट केस आप सब तो पहले देख लैंदे। तो फस्ट केस दे विच की है, देखो यह तां ही पॉसीबल है जदों जां तां ए 0 होवे, ए बी दोनों 0 होण, ये तां ही पॉसीबल है। ठीक है, अगर ए ते बी 0 हो गए, हुण ध्यान नाल देखो मैंने की सिचुएशन लिखी सी ये। हुण इत्थे देखो मैं तुहानूं कह रही हूँ मेरे को ए ते बी 0 हो जाने चाहिए हैं। अगर मेरे को ए ते बी 0 हो गए तो मेरे को की बन गया x पावर 0 y पावर 0, तो दोनों की आ गए 1। एक तो सिचुएशन ए होगी क्योंकि ए भी 1 होएगा ए भी 1 होएगा, आपस इक्वल होंगे। ठीक है, अगर मेरे को की है पावर्स दोनों दियाँ 0 ने तो मेरे को दोनों इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, हुण हर जगह तो नहीं ना इक्वल होणगे, कुछ केस ने कुछ सिचुएशनस ने कि हाँ जी इस ते ही इक्वल होणगे। समझ रहे इस चीज़ में? सो मेरे को एक केस तो बन जाता है कि मेरे को या तो ए या फिर वी दोनों की होने चाहिए ने, 0 होने चाहिए ने। सैकेंड केस मेरे को की बनता है, सैकेंड केस मैनू कहते कि या तो मेरे को अगर ए भी 0 नहीं है तो मेरे को एक्स और वाई 0 होने चाहिए ने। हुण देखो ये जेकर मैं तुहानूं कह दा कि एक्स और वाई 0 ने, ठीक है, तो मेरे को की बनेगा 0 की पावर ए इज़ इक्वल टू 0 की पावर बी। अरे भाई 0 की पावर कुछ मर्जी कर दो, आना तो उसने 0 ही है, तो दोनों की बन जाएंगे 0 ही आएंगे। ठीक है, तो मतलब मेरे को सैकेंड केस दे विच भी की है दोनों इक्वल बनते हैं, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ए भी 0 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ एक्स वाई 0 ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਵਰ 0 ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਬੇਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹ 0 ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੋਰ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਂ एक्स और वाई ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ, 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖੋ एक्स की वैल्यू भी 1 है 1 की पावर ए, वाई की वैल्यू भी 1 है 1 की पावर बी, 1 इज़ इक्वल टू 1। सिंपल। तो मेरे को सिर्फ 3 सिचुएशनस ने जिहदे इक्वल होणगे, या फिर पावर 0 होवे या फिर बेस 0 होवे। अगर दोनों नहीं है तो मेरे को बेस जो है वो दोनों की वैल्यू 1 होनी चाहिए है। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, क्लीयर? तो ये तो कुछ रूल सीगे, सो हर एक रूल नूं अपने माइंड च रखियो, बिठा लो चंगी तरह। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। इस तो बाद मैं तुहानूं कहा सी कि कुछ क्वेश्चनस ना आपां डिस्कस करते हैं, स्क्वायर रूट क्यूब रूट। एक मैं तुहानूं सजैशन दिंदी हाँ, ठीक है, इसनूं अपना थोड़ा सीरियस लाइयो कि जो तुहाडे एटलीस्ट 20 तक जो तुहाडे स्क्वायर रूट्स हैं, ठीक है, 20 तक तुहाडे स्क्वायर कह सकते हैं आप, स्क्वायर रूट सॉरी स्क्वायर है, और 10 तक जो तुहाडे क्यूब्स हैं वो तुहाडे माइंड दे विच होने चाहिए हैं 24/7। तुहाडे तो कोई भी अगर पूछे कि 19 का स्क्वायर की है तो तुसीं मिनट च दस दो कि हाँ जी ए है, क्योंकि तुहानूं याद है। तो वो 20 तक स्क्वायर, 10 तक क्यूब याद कर लो, रट लो, जो कुछ भी कह लो, ठीक है, तो याद होने चाहिए है। क्लीयर? चलो हुण देखो मैं तुहानूं कुछ एग्जाम्पल्स आप कर लैंदे हैं। ठीक है, सब तो पहले तो आप देख लैंदे स्क्वायर रूट किवें निकालते हैं। वैसे तो दस्सिया होया, आप रिवीजन ही करनी है एक। ठीक है, हाँ जी, तो स्क्वायर रूट किवें निकालना है? देखो मैं तुहाडे सामने कोई नंबर ले लिया, लाइक मेरे को ये नंबर है 1296। ठीक है, हुण मैं तुहानूं कहा सी कि स्क्वायर दे विच की करो, लास्ट 2 डिजिट ले लो। जो आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो लास्ट 2 डिजिट लो। ठीक है, किन्ने डिजिट लैने आ? 2 किहदे विच? स्क्वायर दे विच। जो आप क्यूब रूट निकालांगे उदों आप लास्ट 3 डिजिट लवांगे। ठीक है जी, तो स्क्वायर रूट दे विच लास्ट 2 डिजिट ले ले मैंने। ठीक है, हुण मेरे को इन्हां दोनों डिजिट्स का की काम है, लास्ट 2 डिजिट दे विच मैंने कला 6 लिया, किहदी स्क्वायर करा कि मेरे को देखो 1 मिनट। हाँ जी, इत्थे पहले 10 तक अपने स्क्वायर्स लिख लो कि 1 का स्क्वायर कितना हुंदा है, 1 का स्क्वायर कितना होएगा? 1 होएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होएगा? 4 होएगा। 3 का स्क्वायर कितना होएगा? 9 होएगा। 4 का स्क्वायर कितना होएगा? 16 होएगा। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर मेरे को कितना होएगा? 81 होएगा। ठीक है, और 10 का स्क्वायर मेरे को कितना होएगा? 1000 होएगा। ठीक है, हुण एक चीज़ मेरे माइंड दे विच चंगी सॉरी अपने माइंड दे विच चंगी तरह बिठा लो, मेरे को की है जो क्वेश्चन है उस दे विच लास्ट डिजिट की है मेरे को 6 है, लास्ट डिजिट की है मेरे को 6 है, और मैं किहदी स्क्वायर करा कि मेरे को लास्ट डिजिट 6 आवे? कोई नहीं है इत्थे सिवाय 4 और 6 तो। 4 का स्क्वायर करा 16 आऊगा जिसका लास्ट डिजिट की है 6 है। 6 का स्क्वायर 36 आऊगा जिसका लास्ट डिजिट की है 6 है। तो मेरे को की है, मेरे को जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट या तो 4 होएगा या फिर की होएगा
6 होएगा, ਜਾਂ ਤਾਂ 4 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 6 ਹੋਏਗਾ। ठीक है, ਹੁਣ ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, 12 ਰਹਿ ਗਿਆ। 12 ਦੇਖੋ 12 ਕੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 12 ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ 12 3 ਔਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 3 ਔਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੋਟਾ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੀ। 12 3 ਔਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 16 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 12 ਕੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, 16 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। 3 ਔਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, 9 ਔਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਲਵਾਂਗੀ, ਔਰ ਸਮੋਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ 3 ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 3 ਆਏਗਾ। मतलब ये जो आंसर है ਜਾਂ ਤਾਂ 34 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਜਾਂ 36 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਜਾਂ 34 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਜਾਂ 36 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ 34 ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 6 ਦਾ ਹੈ। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ 35 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਔਰ 35 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨ ਚੱਕੇ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। 35 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 25, 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 4, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ 12। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 25। ਹਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ 5 ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 25, ਔਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 4, 4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ 12। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈंने ਨੰਬਰ ਨਿਕਾਲਿਆ 12 25, ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ बड़ा है। देखो मेरे को नंबर आया है 12 25, और मेरे को जो स्टेटमेंट सी वो सी 12 96। जो मेरे को स्केयर आया वो ओबवियस गल है इस तो छोटा है। मतलब जो मेरे क्वेश्चन वाला नंबर है, जो मेरी स्टेटमेंट वाला नंबर है वो हो ग्रेटर है। सो मेरा आंसर जो होएगा वो भी की होएगा ग्रेटर ही होएगा। सो मेरा आंसर जो होएगा वो भी की होएगा, इन्हों दोनों विचों जो ग्रेटर नंबर है वही मेरा की होएगा आंसर होएगा। इन्ना कुछ किवें करांगे जी, इन्ना कुछ नहीं करना जी। इसनूं दोबारा एक बार खुद सॉल्व करो तो तुहानूं पता लगेगा कि यह कितना ईजीएस्ट मैथड है स्क्वायर रूट निकालने का। ठीक है, हुण देखो एक क्वेश्चन मैं तुहानूं दे रही हूँ, पहले उसनूं वीडियो पोज कर लियो। ठीक है, ईमानदारी नाल खुद सॉल्व करियो। ठीक है, अगर मैं उम्मीद कर रही हूँ वैसे तो अगर मैं तुहानूं कहनी है कि हाँ जी वीडियो पोस्ट करके तुसीं खुद सॉल्व करियो, तुसीं करते होंगे। ठीक है, क्योंकि तुहाडी ही प्रैक्टिस लई जो पूरा एक सेशन है तुहाडे लई चलाया गया। ठीक है, तो हुण इसदा निकालो। हुण इस दे विच की करिए, लास्ट 2 डिजिट सिलेक्ट कर ले। लास्ट 2 डिजिट किहड़े है, ये वाले है। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट किहड़े है 09। हुण ठीक है जी, हुण 09 किहदे लास्ट ते आंदा है। अगर मैं कहां कि 7 का स्क्वायर कर दो और 3 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होंदा 9, 7 का स्क्वायर कितना होंदा 49, तो 9 इन्होंने दोनों के स्क्वायर के लास्ट डिजिट के विच आंदा है। ठीक है, हुण अगे अगर आप गल करिए मेरे को किहड़े डिजिट बच गए, मेरे को 640 बच गया। आ की हो गया जी, 640 तो है ही नहीं, 10 का स्क्वायर तो 100 होंदा है। तो फिर ताई तो थानू कहा सी ना कि 20 तक जो स्क्वायर ने अपने याद करके रखो, 20 तक स्क्वायर तुहाडे माइंड दे विच होने ही चाहिए हैं। ठीक है, हुण अगर मैं तुहाडे कोल गल करां, ये चीज़ आपां नूं क्लीयर है कि जो मैं 25 का स्क्वायर कर देनी हाँ और मेरे को की होंदा है 625 होंदा है। सो इत्थे एक चीज़ तो मैंने क्लीयर है कि 25 का स्क्वायर मेरे को होएगा, मतलब इत्थे मेरे को 25 नंबर आएगा। क्योंकि अगर मैं 26 का करांगी वो ग्रेटर हो जाएगा और मैंने स्मॉल वाला नंबर लेना है, और स्मॉल वाला नंबर मेरे को की होएगा 25 होएगा। दैट इज़ द रीज़न मैं थोड़ा क्यों कह रही हूँ कि तुहाडे माइंड दे विच स्क्वायर होने ही चाहिए हैं। क्योंकि अगर तुसीं स्क्वायर रूट निकालन दे लई भी 640 तो पहला स्क्वायर रूट निकालोगे, जो स्क्वायर कट के देखोगे फिर तो तुसीं प्रॉपरली रीति रिवाज नाल ही सॉल्व कर लो, क्योंकि टाइम तो तुहानूं उन्ना ही लगना है। सो याद रखो उन्हां चीज़ां नूं। ठीक है, सो हुण तुहाडे कोल इत्थे की आ गया, 2 नंबर आ गए। किहड़े-किहड़े 2 नंबर आ गए 257 और एक तुहाडे कोल आया 253। इन्हां दोनों दे विचों राइट ऑप्शन किहड़ा होएगा, इन्हां दोनों दे विचों राइट ऑप्शन किहड़ा होएगा। ठीक है, एक तो मैं तुहानूं मैथड दस्सिया, किहड़ा मैथड दस्सिया ये जिहदे विच आपां मिड वाला नंबर जो कि ऑलवेज 5 नाल होया करेगा ਉਹਦਾ स्क्वायर करके आप फाइंड कर लिया करांगे। हुण एक होर मैथड मैं तुहानूं इत्थे दस रही हाँ। देखो ये जो नंबर है 640, ध्यान नाल सुनियो, कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये जो नंबर है 640 ये किहदे विच आया 25 के स्क्वायर दे विच और 26 के स्क्वायर दे विच आया ना। ये किहदे विच आया 25 के स्क्वायर दे विच, 26 के स्क्वायर दे विच आया ना। ठीक है, क्लीयर है ये चीज़। हुण की करो,
25 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कितना है 625। तो मैं की किया 26 का स्केयर कर लिया, 26 का स्केयर कर लिया। हुण 26 का स्केयर अपने कोल कितना हुंदा है 676 हुंदा है, ठीक है जी। 26 का स्केयर हुंदा है 676। हुण देखो मैं ये क्यों किया, ये मैंने की किया, मैं इत्थे कंपेयर कर रही हाँ इन्हां 3 नंबर्स नूं। हाँ जी, इन्हां 3 नंबर्स नूं मैं इत्थे कंपेयर कर रही हाँ कि 640 625 ते 600 इन्हां दोनों विचों ज़्यादा क्लोज किहड़ा 640 दे। इन्हां दोनों दे विचों जो मेरे नंबर्स आए ने इन्हां दोनों दे विचों ज़्यादा क्लोज किहड़ा 640 दे। 25 नूं जेकर मैं कैलकुलेट करके देखदी हाँ तो मेरे को कितना डिफरेंस आता है 5 1, मतलब इन्हां दोनों विच 15 का डिफरेंस है और इन्हां दोनों विच किन्ने का डिफरेंस है 36। सो ज़्यादा क्लोज किहड़ा है 25 है ना, छोटी वैल्यू ज़्यादा क्लोज है ना। सो इन्हां दे विचों छोटी वैल्यू किहड़ी है, ये वाली छोटी वैल्यू ना, ये तुहाडा की हो जाएगी आंसर हो जाएगी। इत्थे मैं तुहाडे नाल 2 मैथड डिस्कस किए ने स्केयर रूट निकालण दे, तुहानूं जिहड़ा सूटेबल लगदा तुसीं ओह मैथड की है यूज़ कर सकते हो स्केयर रूट दे विच, ठीक है। क्लीयर है, ठीक है। वैसे जो हाल तक थानू क्लीयर नहीं होया तो तुसी जो लैक्चर नंबर 6 सीगा मे बी, ठीक है, जिहदे विच आपां शॉर्ट ट्रिक यूज़ कीती ने, उहदे विच मैं थानू इन्ना डीपली एक्सप्लेन किया होगा कि स्केयर रूट आपां किवें निकालीए, ठीक है। तो उथों अपना देख लियो, ठीक है। अगर गल करिए बाकी जिवें आपां क्वेश्चनस करांगे तो थानू प्रॉपरली क्लीयर हो जाना है। क्यूब रूट हुण आपां किवें निकाल सकते हैं, उस तो पहला मैं तुहाडे लई जो कुछ स्केयर रूट के क्वेश्चनस ने एक अद्धा, क्योंकि टाइम थोड़ा जिहा ही रह गया, तो उन्होंने अकॉर्डिंग आप थोड़े स्केयर रूट के जो क्वेश्चनस ने वो तुहाडे नाल डिस्कस करना चाहनी हाँ, ठीक है। तो डिस्कस थोड़ा देख लैने कि किद्दां दे जो क्वेश्चनस होंदे हैं वो अपने एग्जाम दे विच बन पाते हैं। सब तो पहला तो जिवें मैं तुहाडे सामने क्वेश्चन लिख लिया कि लाइक फॉर एग्जाम्पल इत्थे मेरे को स्केयर रूट है और उसके अंदर स्केयर रूट है, ठीक है। 2 5 2 5 0 0 प्लस 9 6 1, ठीक है। हुण कहंदे इस वैल्यू नूं फाइंड आउट करो कि इस वैल्यू का आंसर कितना होएगा जिस नूं सॉल्व करो। हुण इत्थे की है स्केयर रूट दे अंदर स्केयर रूट है, ठीक है। सो इहदे विच की करांगे, एक बार तो जो ए वाला स्केयर रूट है इसनूं एज इट इज़ रखांगे। हुण इस दी वैल्यू कितनी हुंदी है, ठीक है। देखो इस दी वैल्यू कितनी होएगी 50 होएगी। अगर मैं 50 का स्केयर करदा 2500 आएगा, ठीक है। और अगर मैं 31 का स्केयर करदा तो मेरे को ये आएगा। सानू किवें पता लगेगा जी, देखो सब तो पहला तो है तुहाडे कोल 2500, ठीक है। 2500 दा स्केयर रूट की करो, इहदे विच 2 zeros ने, इहदे विच 2 zeros ने, जीरो वाला कॉन्सैप्ट दस रही हूँ तुहानूं, इहदे विच 2 zeros ने। तो एक चीज़ तो तुहानूं क्लीयर है कि जो मैं 10 का स्केयर करदा तो अज मेरे को 100 आ जाता है। चलो छड्डो, ये तो सारिਆਂ ਨੂੰ ही पता है कि 10 का स्केयर 100 होंदा है, ठीक है। 2 zeros दे विच मैंने 1 0 बाहर निकाल ली, 2 zeros दे विच मैंने 1 0 बाहर निकाल ली, ठीक है। पिछे मेरे को किहदा स्केयर रूट रह गया क्योंकि 2 दे विचों ही निकला ना, पिछे मेरे को किहदा स्केयर रूट रह गया 25 का, क्योंकि इन्होंने दोनों तो मैंने खत्म करके 1 0 बाहर निकाल ली। हर एक क्वेश्चन जिहदे विच तुहाडे कोल जीरोज होणगियां उन्होंने तुसीं एवें सॉल्व करना है, पर ध्यान रखना है जीरो ईवन नंबर दे विच होनी चाहिए है, ऑड नंबर दे विच नहीं होनी चाहिए है। इत्थे मेरे को 2 जीरो सीगियां इसलिए मैंने 1 0 निकाल ली। अगर बाई चांस मेरे को 3 जीरोज होंदियां तां भी मेरे को इत्थे 250 रह जाता, क्योंकि पिछलियां 2 दे विचों मैं 1 निकाल लैंदी, समझ रहे हो, ठीक है। हुण देखो 25 का स्केयर रूट कितना हुंदा 5, तो दैट्स 50 आंसर आ गया। 50 मेरे को की होएगा इस तरीके नाल। सो बिना पेन कॉपी चक्के तुसीं उत्थे क्वेश्चनस नूं इदां सॉल्व करना है, ठीक है। हुण 961 है, 961 नूं तुसीं किवें सॉल्व करोगे, 961 मेरे को की है 961, इसका आपां की निकालांगे स्केयर रूट निकालांगे। स्केयर रूट किवें निकालांगे, देखो मेरे को की है लास्ट 2 डिजिट मैं इत्थे लै लैने हैं। लास्ट 2 डिजिट मेरे को की ने, लास्ट डिजिट की है 1 है, जां तां ये 1 का स्केयर होएगा जां फिर किसका होएगा 9 का, ठीक है। ज़्यादा मेरे को की आएगा 1 आएगा या फिर 9 आएगा, ठीक है। उस तो बाद मेरे को अगे की बच गया 3 बच गया ना, सॉरी 9 बच गया ना। 9 किहदे विच आंदा है 3 दे विच और 4 दे विच आंदा है, ठीक है। हुण जेकर मैंने इत्थे चीज़ देखी जाए तो मेरे को की है क्लोज किहदे है, देखो या तो मेरे को 31 होएगा या 39 होएगा। क्लीयर है इत्थों तक। हुण मैं तुहानूं ये दसना है कि 31 आएगा या 39 आएगा। ये नंबर ज़्यादा क्लोज किहदे है, 9 जो है ज़्यादा क्लोज किहदे है 3 दे है ना, ज़्यादा क्लोज किहदे है 3 दे है ना, क्योंकि जो मैं 3 का स्केयर करांगी 9 आ जाएगा, 4 का स्केयर करांगी 16 आ जाएगा। तो ज़्यादा क्लोज किहदे है
9 ਦੇ या 16 ਦੇ 9 ਤਾਂ 9 ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਲੋਜ਼ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਮੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। 4 ਔਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਆ, 3 ਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮੋਲ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 31 ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਮੈंने ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਿਆ। ठीक है जी। नैक्सट अगर गल करिए तो इन्होंने दोनों का एडिशन मैंने किया तो मेरे को कितना बन गया 81। ताई मैं थोड़ा कह रही हूँ याद होने चाहिए ने 81 किसका स्क्वायर होंगे 9 का, और 9 मेरे को की हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हुण इत्थे की है 9 मेरे को आंसर आ गया, थोड़ा क्वेश्चन इत्थे सॉल्व हो गया, खत्म हो गया। तो मेन कॉन्सैप्ट तुहाडा ये दसना सी कि अगर जीरोज़ वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसमें तुसीं किवें सॉल्व करना है। अगर 2 जीरोज़ ने तो 1 जीरो बाहर निकाल लो, पीछे जो नंबर है गया उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दो। 4 जीरोज़ ने तो 2 जीरोज़ बाहर निकालो, क्योंकि 2 दी आप 1 निकालते हैं। ठीक है, समझ लो इस चीज़ को। और इसनों आप किवें सॉल्व करना स्क्वायर रूट, वो तुहाडे सामने सी। ठीक है, क्लीयर। अगे अगर आप गल करिए नैक्सट तुहाडे सामने क्वेश्चन अगर देखिए, हाँ जी, जिवें फॉर एग्जाम्पल यही एक क्वेश्चन है 176 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2401। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 2401 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2401 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ, 2401 ਦਾ। 2401 ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਜੋ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਏਗਾ 9, ਇੱਕ ਆਏਗਾ 1, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 ਹੁੰਦਾ और 9 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 81 ਹੁੰਦਾ। ठीक है, सो मेरे को लास्ट डिजिट ज़्यादा की होएगा 1 होएगा या 9 होएगा। हुण देखो इस तो बाद 24 किन्ना दे स्क्वायर दे विच आंदा है, 5 दे स्क्वायर दे विच आएगा और 4 दे स्क्वायर दे विच आएगा। ठीक है, 5 दे स्क्वायर दे विच आएगा या फिर 4 दे स्क्वायर दे विच आएगा। स्मॉल नंबर केड़ा दोनों दे विचों 4, मतलब ज़्यादा मेरे को 41 होएगा आंसर, या मेरे को 49 होएगा। हुण मेरे को 41 है या 49 है, उसनूं किवें करांगे आपां, उसनूं आपां करांगे 4 का स्क्वायर कितना होंदा है 16 होंदा है ना। 4 का स्क्वायर कितना होंदा है 16 होंदा है, और 5 का स्क्वायर कितना होंदा है 25। हुण चैक करो कि 24 जो है वो ज़्यादा नेड़े किहदे है, 16 दे है या 25 दे है। 25 दे ज़्यादा क्लोज है ना। अगर 25 दे ज़्यादा क्लोज है तो मेरे को की है इत्थे लार्ज वैल्यू है ना दोनों दे विचों, 4 और 5 दे विचों तो 5 लार्ज वैल्यू है, तो मेरे को जो आंसर होएगा वो भी की होएगी लार्ज वैल्यू होएगी। मतलब जो मेरा इसका स्क्वायर रूट होएगा वो कितना होएगा 49 होएगा। सो दिस इज़ 176 प्लस 49। ठीक है, अगर तुहानू विच 5 का स्क्वायर करके फाइंड करने वाला कॉन्सैप्ट ईजी लगता है तुसीं उहनूं भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और तुहाडा आंसर सेम ही आना, इदां नहीं हुंदा कि आंसर कॉन्सैप्ट तुसीं कोई भी यूज़ कर सकते हो जो तुहानू ईजी लगता है। ये ना सोचो अगर तुहानू इदां लगता कि हाँ जी मैं इहदे नाल जल्दी फाइंड आउट कर सकदा तो तुसीं वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल इसनूं जो आपां सॉल्व करांगे तो मेरे को कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 11 और 1 12 हो जाएगा। ठीक है, 225 और 1 किसका स्क्वायर होंदा है 15 का स्क्वायर होंदा है। ठीक है जी, क्लीयर है, क्लीयर है। एक अद्धा होर क्वेश्चन कर लेने आपां। ठीक है, खुद सॉल्व करो जी, बार बार दस रही है, एक बार प्लीज़ पहला खुद जरूर सॉल्व करो। ठीक है, 248 प्लस उस तो बाद अगर गल करिए रूट दे विच की है 52 प्लस अनरूट दे विच की है 144। एक क्वेश्चन तुहाडे सामने है। ठीक है, इस क्वेश्चन किवें सॉल्व करांगे तो सब तो पहला जो हुण तुसीं सोचोगे कि इहनूं किवें सॉल्व करिए जी, तो सब तो पहला जो अंदर वाला रूट हुंदा ना, हुण मैंने इत्थे चीज़ दिख रही है कि सब तो अंदर वाला रूट यह है, इसनूं सॉल्व करो। ठीक है, तो एक चीज़ भी मैनूं क्लीयर है कि अगर तुसीं स्क्वायर रूट याद किए होए ने तो 144 किसका स्क्वायर हुंदा है 144 किसका स्क्वायर हुंदा है 12 का। ठीक है, तो इत्थे मेरे को किहड़ी वैल्यू बन गई, ये वैल्यू बन गई 46। हुण ये भी मैनूं क्लीयर है कि 64 जो है वो किसका स्क्वायर हुंदा है 8 का। सो इत्थे मेरे को डायरैक्टली की आ जाएगा 8 आ जाएगा। हुण इन्हां दा भी मैं ऐड कर देनी हाँ, इन्हां दा ऐड करके मेरे को कितना आ जाएगा 1256 आ गया। ठीक है, सॉरी मे बी इत्थे 1 नहीं सी, सॉरी हाँ जी इत्थे 1 नहीं सी, 256 आ गया। ठीक है, और 256 अगे किसका स्क्वायर रूट हुंदा है, इनू भी मैं निकालांगी नहीं क्योंकि मेरे याद है 16। अगर तुहाडे स्क्वायर रूट याद ने तो तुसीं मिनट, और तुहानूं इन्ना लंबा स्क्वायर रूट फाइंड करना नहीं आएगा कि तुहानूं याद भी नहीं, एटलीस्ट 20 तक मैं तुहानूं कह रही हूँ तो 20 तक तो तुसीं याद रट्टा मार ही लो। ठीक है, 25 तक कर लैने हो बहुत अच्छी गल है, 20 तक तो जरूर तुसीं अपने माइंड दे विच रखो। ठीक है जी, होर अगर क्वेश्चन आप देखिए तो होर किदां दे क्वेश्चन हो सकते हैं, जिवें 1 9/16। ठीक है, ये हो सकता है। हुण देखो ये की है मिक्स फ्रैक्शन दे विच मैनूं गिवन है
ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਬਾਈ 16, ਠੀਕ ਹੈ। 16 ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 25/16 ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 1/2 ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਲੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 1/2 ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 25 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 5 ਆ ਜਾਏਗਾ, नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दैट्स योर आंसर, सिंपल, क्लियर। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 1/4 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਹਾਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਕ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਜਾਂ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ठीक है। और कमेंट करके अपने डाउट्स अगर तो कोई है या फिर अपने रिव्यूज़ जरूर दो कि समझ आया या नहीं, क्लीयर होया या नहीं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो ग्रुप के जो कमेंट सैक्शन के पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नैक्सट वीडियो के और डिस्कस करांगे, इस टॉपिक नू कंटिन्यू रखांगे, ठीक है जी। थैंक यू।